van der Waal equation of state about gas laws, the constant B is a measure of. So constant B, which is known as co-volume or excluded volume, is a measure of number. जो first option है that is intermolecular collisions per unit volume, no. B, it is intermolecular attraction, that is actually A. और C जो option है volume occupied by the molecules, and D option is intermolecular repulsions. So it has to be C, volume occupied by the molecules. So 71st क्वेश्चन का इट हैज़ टू बी सी आंसर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था जो बी है दैट इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, बट यू हैव टू टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड दैट इज सी ऑप्शन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 71st क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 72nd क्वेश्चन. In the equation PV is equal to 1 by 3 mn x square, x represents the. So आपको जो काइनेटिक गैस इक्वेशन करवाई है मैंने उसमें था ये कि PV is equal to 1 by 3 mn u square bar, और यहाँ पे u square bar की जगह x square लिया गया है और x represents the root mean square velocity और root mean square speed. So 72nd का it has to be C option, root mean square speed. Next is 73rd question. Molecular mass of argon is 10 times the molecular mass of helium. The rate of diffusion of helium will be. 73rd question देखिए. तो rate of diffusion, Graham's law of diffusion आपने लगाना है RHE, rate of diffusion for helium divided by rate of diffusion for argon. They will be inversely proportional to their molecular masses, that is molecular mass of argon ऊपर होगा और molecular mass of helium नीचे होगा. Now molecular mass of argon is 40 and helium का it is 4, so this is under root of 10. Now he is asking that rate of diffusion of helium will be. Now rate of diffusion of helium, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन को ऊपर लेके जाइए, दैट विल बी अंडर रूट 10 इंटू रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर आर्गन. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू रेट्स ऑफ डिफ्यूजन्स, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज अंडर रूट 10 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन. सो 73rd का इट हैज़ टू बी ए ऑप्शन, रूट 10 टाइम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन. नेक्स्ट इज 74th क्वेश्चन. A and B are two identical vessels. A contains 15 gram of ethane at 298 Kelvin and 1 atmosphere. The vessel B contains 75 gram X2 at the same temperature and pressure. The vapor density of X2 is. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि दोनों गैसेस जो हैं एक तो आइडेंटिकल वेसल्स हैं. आइडेंटिकल वेसल्स मीन्स जो वॉल्यूम्स हैं दे आर इक्वल. आइडेंटिकल वेसल्स मींस वॉल्यूम्स आर इक्वल. नंबर 2 क्या चीज बराबर दी है इसने? सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर ऑल्सो. सो दीज 3 क्वांटिटीज दीज आर कांस्टेंट. नाउ you have to use, this is 74th question, you have to use PV is equal to nRT. P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, बचा क्या? N. That means N1 will be equal to N2. In both the vessels N1 will be equal to N2. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं A वेसल में they should be equal to number of moles of the second gas in B vessel. अब A वेसल में आप देखिए A contains 15 ग्राम of ethane at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. 15 ग्राम of ethane, number of moles कैसे निकलेंगे? 15 ग्राम mass upon molecular mass and ethane is, this is ethane, so this will be 24 plus 6, that is equal to 30. So molecular mass of ethane is 30. The number of moles क्या होते हैं? Mass upon the molecular mass, that is 15 divided by 30. Now
वेपर डेंसिटी ऑफ x2 पूछ रहा है, ये वेपर डेंसिटी ऑफ x2 हैज टू बी कैलकुलेटेड। सो आप देखिए सेकंड केस में वेसल बी कंटेन 75 ग्राम ऑफ गैस। तो सबसे पहले आप एम रखिए अपना कि आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है x2 गैस का। सेकेंड वेसल में वी हैव 75 ग्राम ऑफ x2, दैट मीन्स वेट या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिस विल बी number of moles of second gas. Now you have to calculate this molecular mass. This will be 75 into 2 which is equal to 150. So molecular mass आ गया second gas का. अब he is asking for the vapor density of X2. आपको relation पता है कि twice vapor density is the molecular mass. Now you have to use the relation that twice vapor density is the molecular mass. Now vapor density will be equal to molecular mass divided by 2. That means it will be 150 divided by 2 which is equal to 75 grams, 75. So vapor density is 75. So 74th question का जो correct option है that has to be A option 75. एक बार फिर से देखिए 74th question A and B बोलता सेम क्वांटिटी के वेसल्स हैं, दैट मीन्स वॉल्यूम्स आर सेम, V कांस्टेंट है दोनों में, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात हो रही है दोनों गैसेस की, टेम्परेचर प्रेशर भी कांस्टेंट है, R आपको पता है दैट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो क्या बचा N नंबर ऑफ मोल्स, दैट मीन्स N1 शुड बी इक्वल टू N2 और वी कैन से दैट N1 कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स इथेन के कैसे निकलेंगे, मास डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 30 और दूसरी गैस जो है दैट इज 75 ग्राम्स दी है तो डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट कर लिया दैट इज 75 into 2 150. Now you know the relation that twice vapor density is molecular mass, so vapor density will be equal to the molecular mass divided by 2, 150 divided by 2, that is A option 75. Next question is 75th question. At certain temperature the RMS speeds of the molecules of two gases X and Y have the ratio 3:1. The ratio of their molecular masses mx is to my will be. तो टेम्परेचर दोनों के लिए सेम बोला गया एट सर्टेन टेम्परेचर। अब आपको पता है व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अंडर रूट 3RT बाय m, x के लिए इट विल बी x के लिए मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा अगर रेशियो लेंगे। RMS फॉर Y हैज टू बी अंडर रूट 3RT बाय my. नाउ इट विल बी, रेशियो लीजिए दिस विल बी 1 by mx और my ऊपर आएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन, एट सर्टेन टेम्परेचर RMS स्पीड्स का जो रेशियो है दो गैसेस का x एंड y का, उनका रेशियो दिया है 3:1। रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मासेस mx is to my निकालना है दिस इज 3:1, x अपॉन y जो RMS वेलोसिटी का रेशियो 3:1। नाउ my अपॉन mx अंडर रूट आ गया ये। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं इस इक्वेशन की दैट विल बी my अपॉन mx is equal to 9/1. That means what should be mx is to my, mx is to my will be equal to 1:9. So this will be A option 75th का 1:9. Again come to 75th question. इसने बोला था RMS velocities का जो रेशियो है तो उससे आपने रेशियो लिया, देखिए ये फॉर्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट 3RT बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। रेशियो लेंगे 3RT विल कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट ओनली विद
अंडर रूट ऑफ एम एक्स अपॉन एम वाई अपॉन एम एक्स, इसका रेशियो दिया है आपको 3:1. This is equal to under root of my upon mx. Now squaring both the sides, we will obtain my upon mx is equal to 9 upon 1. और इसको उल्टा कीजिए, mx is to my will be 1:9. That means 75th का A 1:9 is the correct option. Next question is 76th question. Gas at a pressure P naught is contained in a vessel. If the masses of all the molecules are halved and their speeds doubled, the resulting pressure P will be equal to. So you have to use the relation 76th question में that half mv square is equal to 3/2 pv. तो स्टार्टिंग में वी हैव प्रेशर पी नॉट वी. अब इसने क्या कहा, ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन ले रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 pv और 3/2 RT फॉर 1 मोल. तो ये ले लिया 3/2 pv, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. नाउ इसने कहा कि ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन होगी. अब कहा इसने मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ्ड, तो दिस विल बी m/2. और स्पीड्स को क्या कहा, स्पीड्स डबल्ड, दैट विल बी v था पहले, तो अब 2v हो जाएगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2 pv. वॉल्यूम सेम है, प्रेशर मान लीजिए अब बन गया p, पहले था p नॉट. अब रिलेशन निकालना है p और p नॉट में, डिवाइड कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली से डिवाइड कर दीजिए. तो दिस विल बी हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय half m/2 4v square. So this will be half of cancels out, m cancels out, v square cancels out. This will be 2. 1/2 is equal to 3/2 cancels out. Divide कीजिए तो this will be only p naught upon p. तो p naught upon p क्या आ रहा है, p naught upon p is equal to 1/2. So what should be p? P will be equal to, यहां से देखिए P ऊपर लेके जाइए, क्रॉस कीजिए, P will be equal to 2p नॉट. स्टार्टिंग में जो प्रेशर है P नॉट, उसका डबल हो जाएगा प्रेशर. अब अगर ऐसा करें जैसा इसने करवाया है कि मासेस को क्या किया, मॉलिक्यूल्स के मासेस जो हैं दे आर हाफ्ड एंड देयर स्पीड्स डबल्ड, देन P जो प्रेशर आएगा, रिजल्टेंट प्रेशर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस P नॉट. जो स्टार्टिंग में प्रेशर था उसका डबल हो जाएगा. सो 76 का इट हैज टू बी बी ऑप्शन, 2p नॉट. फिर से देखिए, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 pv. स्टार्टिंग में प्रेशर इज p नॉट, मास एक मॉलिक्यूल का दैट इज m, वेलोसिटी इज या स्पीड इज v. अब क्या किया, मास को कर दिया हाफ और वेलोसिटीज को कर दिया ट्वाइस, 2v होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 pv. रिजल्टेंट प्रेशर मान लीजिए p है, वॉल्यूम विल रिमेन द सेम, सेम वेसल में बात हो रही है. ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट 1/2 इज इक्वल टू p नॉट अपॉन p, दैट इज p इज इक्वल टू 2p नॉट. तो रिजल्टेंट प्रेशर विल बी ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर, सो p विल बी इक्वल टू 2p नॉट. सो 76 का b विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज 77th क्वेश्चन, एंड 77th क्वेश्चन इज फॉर हाइड्रोजन गैस Cp minus Cv is equal to A, and for oxygen gas Cp minus Cv is equal to B. So the relation between A and B is, Cp minus Cv is a constant, gas constant. अब हाइड्रोजन गैस के लिए Cp minus Cv will also be a constant. Cp minus Cv for oxygen gas will also be constant. That means A has to be equal to B. A will be equal to B. 77th का D, A is equal to B is the correct option. 78th question, for a gas R upon Cv is equal to 0.67, the gas is made up of molecules which are,
So 78th question, फॉर ए गैस R अपॉन CV की वैल्यू दी हुई है, R अपॉन CV दैट इज इक्वल टू 0.67. R क्या होता है? R is CP minus CV. So upon CV that will be equal to 0.67. Now this is CP upon CV minus CV upon CV, that is 1, is equal to 0.67. So CP upon CV gamma will be equal to 1 plus 0.67, that is 1.67. CP upon CV is equal to 1.67. और ये कौन सी गैस के लिए होता है 1.67? दैट इज अ मोनोटॉमिक गैस. अगर किसी भी गैस के लिए Cp upon Cv that is gamma is equal to 1.67, that has to be a monoatomic gas. So 78th का it has to be A option, monoatomic. तो देखिए इसमें क्या किया, R upon Cv is equal to 0.67, this is given. R होता क्या है? R is equal to Cp minus Cv, that is equal to 0.67. इसको सेपरेट आउट किया, Cp upon Cv और माइनस Cv upon Cv is equal to 1. So Cp upon Cv minus 1 is equal to 0.67. That means Cp upon Cv is equal to 1.67. और 1.67 जब वैल्यू आ रही है Cp upon Cv की, that has to be a monoatomic gas. So 78th का A monoatomic is the correct option. Next is 79th question. Figure shows graphs of pressure versus density for an ideal gas at two temperatures T1 and T2. Which is correct? So he is asking कि which is the correct option. Pressure और density में graphs given हैं, temperatures given हैं, different temperatures पे graphs given है, linear graphs आ रहे हैं. तो आपको पता है pressure density में क्या relation होता है. 79th question, you know that Pm is equal to rho RT. It is clear from this equation that अगर आप P और density, pressure और density में ग्राफ बनाएंगे, that has to be a linear graph, एक लाइन आनी चाहिए straight, क्योंकि इनके बीच में relation जो है they are directly proportional. Now come to the graph that pressure यहाँ पे है, density यहाँ पे है, दो लाइन्स इसने बना के दी हैं, एक T1 टेम्परेचर के लिए, एक T2 टेम्परेचर के लिए. नाउ इज आस्किंग कि टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन है, T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा. अगेन कम टू दिस रिलेशन दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस गैस के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, या अदर वे राउंड, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस गैस का प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा. अगर फिजिकली देखा जाए ऐसा क्यों होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स उतनी ही ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ हिट्स मेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विल बी मोर. सो प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो हायर द प्रेशर हायर शुड बी द टेम्परेचर. तो T2 हैज टू बी लोअर एज कंपेयर टू T1. तो यहां से क्या रिलेशन निकलता है कि T1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू T2. T1 हैज टू बी ग्रेटर देन T2. सो 79th का A option, T1 greater than T2. Next come to 80th question. Now 80th question is 4.4 gram of a gas at STP occupies a volume of 2.24 liters. The gas can be. 80th question देखिए, 2.4 लीटर्स है और उसका 2.24 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास गिवन है दैट इज 4.4 ग्राम्स. एसटीपी पे बात हो रही है, और आपको पता है एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है. एवोगैड्रो लॉ कहता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशंस शुड बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो आपका एम क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका एम होना चाहिए कि आप 22.4 लीटर जो गैस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालिए, क्योंकि रेफरेंस आपको मिल गया यहाँ पे 2.24 लीटर्स का इतना मास है 4.4 ग्राम्स. तो आपने निकालना है 22.4 लीटर्स का क्या मास होगा. पहले तो ये काम कीजिए, तो दैट विल बी 4.4 डिवाइडेड बाय 2.24 इनटू 22.4 एंड दिस विल बी इक्वल टू, दिस हैज टू बी इक्वल टू
तो दिस विल कैंसल आउट, यहाँ पे 10⁻² है, 10⁻1 है, 10 आ जाएगा ऊपर, दैट विल बी 44 ग्राम्स, दिस विल बी 44 ग्राम्स। अब आपने ऐसी गैस आइडेंटिफाई करनी है, जितनी भी ऑप्शंस हैं, जिसमें जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास 44 है, दैट हैज टू बी द आंसर। कौन सी गैस है? CO2। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, CO2। सो 80th क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। 4.4 गैस है, 4.4 ग्राम ऑफ कोई गैस दी हुई है और उसका मास दिया हुआ है, उसका सॉरी वॉल्यूम दी हुई है 2.24 लीटर्स। 2.24 लीटर्स का इतना मास है, आपने 22.4 लीटर्स का मास निकाल लेना है और वो आ रहा है 44 ग्राम्स। दैट मीन्स 22.4 लीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मास आता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो ऐसी गैस कौन सी होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम्स है? दैट हैज टू बी CO2। C का 12 होता है और ऑक्सीजन हैं 2, 32, 32 प्लस 12 44। नेक्स्ट इज 81st क्वेश्चन। वंडर वॉल इक्वेशन reduces itself to ideal gas equation at। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि वंडर वॉल इक्वेशन किसके लिए होती है? रियल गैसेस के लिए। और वो कहता है रिड्यूस हो जाएगी आइडियल गैस इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। दैट मीन्स रियल गैसेस आइडियली कहां पे बिहेव करती हैं? दिस इज द क्वेश्चन। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करती हैं? दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क। तो रियल गैसेस कहां पे आइडियली बिहेव करती हैं? दैट हैज टू बी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जरा सा मोल्ड किया क्वेश्चन इसने, और कुछ नहीं है कि वंडरवॉल इक्वेशन जो कि रियल गैसेस के लिए होती है, वो रिड्यूस कर जाएगी, बोलता इटसेल्फ टू द आइडियल गैस इक्वेशन एट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रियल गैसेस आइडियली कहां बिहेव करेंगी? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे, एंड दैट इज सी ऑप्शन। सो 81st का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 82nd क्वेश्चन। 5 ग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट 87 डिग्री सेल्सियस and 75 mm pressure are taken, which of them will have the least volume? एटी सेकेंड क्वेश्चन। आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT। इसने पूछा विच ऑफ देम हैज द लीस्ट वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम में रिलेशन निकाल लीजिए। PV इज इक्वल टू N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर मास में इनवर्स रिलेशन है। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सो अब आपने ऑप्शन में देखना है, इसने पूछा विच ऑफ देम विल हैव द लीस्ट वॉल्यूम। लीस्ट वॉल्यूम किसकी होगी? जिसका मॉलिक्यूलर मास मैक्सिमम है इन सब में। तो HF, HCl, HBr, HI। तो किसका मास सबसे ज्यादा होना चाहिए? HI का। सो इट हैज टू बी डी ऑप्शन, HI। 82nd का डी ऑप्शन, HI। नेक्स्ट इज 83rd क्वेश्चन। At a constant temperature, what should be the percentage increase in pressure for a 5% decrease in the volume of the gas? तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, कौन सा लॉ लगाओगे आप? बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो आपने बॉयल्स लॉ लगाना है। 83rd क्वेश्चन देखिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है, that means PV will be a constant. P into V will be a constant. That means P1 V1 should be equal to P2 V2. स्टार्टिंग में वॉल्यूम मान लीजिए आप V only, प्रेशर है स्टार्टिंग में मान लीजिए P1 और P2 सेकेंड प्रेशर हो रहा है। वॉल्यूम कितनी डिक्रीज कर रहे हैं? ही इज सेइंग दैट at constant temperature what should be the percentage increase in the pressure for a 5% decrease in the volume of the gas। तो अगर वॉल्यूम पहले है V, इसका 5% डिक्रीज करा दो V का, तो कितना आ जाएगा? 0.95 V। 5% डिक्रीज हो गया, कितना बच गया? 0.95 इंटू V। सेकेंड वॉल्यूम हैज टू बी
0.95 इंटू वी। अब आप काम कीजिए ये कि P2 निकालिए P1 की फॉर्म में। P2 की वैल्यू क्या आ रही है? P2 विल बी इक्वल टू P1V अपॉन 0.95V. So this will be P1 upon 0.95 which is equal to 1.0526 P1. So P2 कितना आ रहा है? P2 is equal to 1.0526 P1. कितना इंक्रीज हुआ? पहली बात, परसेंटेज इंक्रीज से पहले आप इंक्रीज निकालिए, प्रेशर में कितना इंक्रीज हुआ। कितना था पहले प्रेशर? P1, अब कितना हो गया सेकंड कंडीशन पे? 1.0526 P1। कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज इन प्रेशर। तो कैसे निकालोगे आप इंक्रीज इन प्रेशर? दिस माइनस P1, दैट विल बी 1.0526 P1 minus P1 which is equal to 0.0526 P1. This is the increase. Now percentage increase. परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलता है? कितना इंक्रीज हुआ? 0.0526 P1 था कितना? P1 into 100, so that will be 5.26%. It will be 5.26% इंक्रीज आएगा। 83rd क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, इसकी वजह से करेक्ट ऑप्शन आ रही है 5.26%, दैट इज दी सी ऑप्शन। 83rd में देखिए दोबारा से एक बारी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट हैज टू बी बॉयल्स लॉ। व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर फॉर ए 5% डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस? तो यूज कीजिए रिलेशन बॉयल्स लॉ वाला। पीवी कांस्टेंट है, P1V स्टार्टिंग में वॉल्यूम मान लीजिए V इज इक्वल टू P2, सेकंड प्रेशर इज P2, वॉल्यूम में डिक्रीज किया 5%, नाउ वॉल्यूम विल बी 0.95V। Now P2 की वैल्यू निकालिए P1 की फॉर्म में, दैट विल बी 1.0526 P1। इंक्रीज कितना हुआ? अब सेकंड कंडीशन पे ये प्रेशर है, स्टार्टिंग में P1 था तो इंक्रीज कितना हुआ? सेकंड वाला प्रेशर माइनस फर्स्ट वाला प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 0.0526 P1। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा? कितना इंक्रीज हुआ? 0.0526 P1। कितना था स्टार्टिंग में? डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 5.26% increase. 5.26% increase. Next is 84th question. 10 gram of hydrogen fluoride gas occupies 5.6 liter of volume at NTP. The empirical formula of the gas is HF. The molecular formula of the gas will be. तो इसमें भी this is based on Avogadro's law. 10 ग्राम हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, उसका वॉल्यूम दिया है 5.6 लीटर्स एनटीपी पे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालिए सबसे पहले तो, और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 22.4 लीटर्स जो गैस है उसका क्या मास आ रहा है? 22.4 लीटर्स का क्या मास आ रहा है? दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास। So 84th क्वेश्चन देखिए, 5.6 लीटर्स ऑफ गैस जो है दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, 10 ग्राम है उसका मास। एनटीपी कंडीशन से बात हो रही है, आपने निकाल लेना 22.4 लीटर्स का क्या मास होगा, दैट इज 10 अपॉन 5.6 इंटू 22.4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 40। तो HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वो वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जिस केस में मॉलिक्यूलर मास 40 आ रहा है। तो इट हैज टू बी H2F2। H2F2 H2F2 क्यों? F का कितना दिया हुआ है? एटॉमिक मास 19 19 19 38, दो हाइड्रोजन्स हैं, दिस विल बी 40। 40 ही हमें चाहिए, तो कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? H2F2। सो 84th का C इज द करेक्ट ऑप्शन, H2F2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85th क्वेश्चन, all gases will occupy zero volume when the temperature is reduced to। तो ये हमने चार्ल्स लॉ में किया था कि
एक डिग्री डिक्रीज या इंक्रीज के लिए वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर टी पे अगर निकालनी हो वॉल्यूम, 85th क्वेश्चन देखिए। चार्ल्स लॉ कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज या डिक्रीज करे अगर टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है बाय 1/273 ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे वी नॉट, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवा दें टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना आना चाहिए, वी नॉट अपॉन 273। दैट मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम इज वी, दैट विल बी वी नॉट, राइज कितना हुआ, वी नॉट डिवाइडेड बाई 273। अब टी डिग्री सेल्सियस का राइज करवाइए और वॉल्यूम मान लीजिए दैट इज वी टी, टी डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मान लीजिए वी टी है, दैट विल बी वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी बाय 273। दिस विल बी वी नॉट। सिमिलरली जब डिक्रीज होगा वॉल्यूम का, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। अगर -273 पे लेके जाएं टेम्परेचर, V एट -273 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V नॉट इंटू 1 - 273 डिवाइडेड बाई 273 विच विल बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है वो, एग्जैक्टली इट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, बट वी टेक इट एज ओनली -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 पे या 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज 0। सो 85th का इट हैज टू बी -273 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से देखिए 85th क्वेश्चन। चार्ल्स लॉ में बताया था मैंने आपको कि चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम में इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, और वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर डिक्रीज करो। कितना इंक्रीज होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए बोलता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है 1/273 ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस पे V एट 1 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, V नॉट, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम प्लस V नॉट इंटू 1/273, और T डिग्री सेल्सियस पे क्या वॉल्यूम हो जाएगी, V नॉट प्लस V नॉट इंटू टी बाई 273। दैट इज VT विल बी इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस टी बाय 273। सिमिलरली जब डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। अब T की जगह -273 डालें तो V एट -273 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू V नॉट इंटू 1 - 273 अपॉन 273 विच इज 0। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स at absolute 0 or at -273 डिग्री सेल्सियस is 0. So 85th का D -273 डिग्री सेल्सियस will be the correct option. Next question is 86th question. What volume of CO2 will diffuse in the same time in which 100 milliliter of N2O diffuses? अब ये क्वेश्चन जो है दिस इज बेस्ड ऑन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वैसे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए R1 अपॉन R2 दो गैसेस हैं, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन जो हैं होते क्या हैं, रेट्स ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस डिफ्यूज्ड अपॉन द टाइम टेकन फॉर द first gas to diffuse divided by R2, that is V2 upon T2 is equal to rates of diffusion जो हैं they are inversely proportional to densities या फिर inversely proportional to their molecular masses M2 upon M1. Now what volume of CO2 will diffuse in the same time, times are same, so we have the relation that V1 upon V2 is equal to M2 अपॉन M1। अब फर्स्ट गैस को आप मान लीजिए कि फर्स्ट गैस जो है दैट इज CO2 गैस और सेकंड जो है N2O। फर्स्ट गैस जो है दैट इज CO2, तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ CO2 दैट वी हैव टू कैलकुलेट अपॉन V2।
V2 इज 100 मिलीलीटर N2O के लिए, और मॉलिक्यूलर मासेस दोनों के क्या हैं, N2O और CO2 के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं दे आर इक्वल, दैट इज इक्वल टू 44. So it will be 44 upon 44, that is equal to 1. That means V1 will be equal to 100 milliliter only. और आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मासेस अगर सेम है तो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होंगे, और टाइम अगर सेम है तो वॉल्यूम जो डिफ्यूज हो रही है वो भी सेम होंगी. अगर एक का 100 मिलीलीटर है तो सेकंड गैस के लिए भी इट हैज टू बी 100 मिलीलीटर्स ओनली. सो 86th का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 100 milliliter. Next is 87th question. When the temperature of a certain mass of a gas is increased from 25 degrees Celsius to 26 degrees Celsius at a constant pressure, the volume of the gas. प्रेशर कांस्टेंट कौन से लॉ की बात हो रही है, चार्ल्स लॉ की. और अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करवाते हो तो वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 1/273 of its volume at 0 degree Celsius. So 87th का क्या होना चाहिए, C will be correct option, will increase by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius. Next is 88th question. Which of the following mixture of gases at room temperature does not follow Dalton's law of partial pressure? Does not follow. तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कौन सी गैसेस के लिए फॉलो होता है, विच आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस. ऐसी गैसेस विच आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस उनके लिए डाल्टन्स लॉ फॉलो होता है. तो इसमें आपने देखना है, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस एट रूम टेम्परेचर डज नॉट फॉलो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो ऐसी गैसेस जिसमें इंटरेक्शंस हैं आपस में, वो गैसेस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को फॉलो नहीं करेंगी. So it has to be B option, NH3 and HCl. NH3 and HCl. Because in NH3 and HCl there are forces of interaction, hydrogen bonds बनेंगे. 88th देखिए, NH3 को पहले कंसिडर कीजिए. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन जो है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगी और इसलिए यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. आगे HCl को देखिए, HCl में भी यही है कि दे विल बी पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू Cl. Cl will have delta negative charge because Cl is more electronegative as compared to this hydrogen, so it will attract the shared pair of electron towards itself. तो इंटरेक्शंस आ रही हैं बीच में, देखिए ये वाली, क्योंकि इंटरेक्शंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसके लिए फॉलो नहीं होगा. बिकॉज मेन कंडीशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की यही है कि गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस. सो 88th का इट हैज टू बी बी ऑप्शन, NH3 and HCl. नेक्स्ट इज 89th क्वेश्चन. In a closed flask of 5 liters, 2 grams of oxygen is heated from 300 to 500 Kelvin. Which of the following statements is not correct? तो एक क्लोज फ्लास्क है, 5 लीटर उसमें ऑक्सीजन है, 2 ग्राम है वो, 5 लीटर्स 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड फ्रॉम 300 to 500 Kelvin. Which of the following statements is not correct? Pressure of the gas increases is the first option. Rate of the collisions increases. Temperature increase कर रहे हो, pressure भी increase करेगा. Rate of collisions भी increase करेगा क्योंकि kinetic energy of the gas molecules increase कर जाएगी. Next option है C option, the number of moles of the gas increases. No. Number of moles कैसे increase कर सकते हैं? गैस तो वही है, सैंपल तो वही है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकती है, प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर सकती है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस को कुछ नहीं होगा. सो सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, बिकॉज उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. तो ऑक्सीजन गैस है, किसी क्लोज्ड फ्लास्क में टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दिया 300 से 500 केल्विन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इंक्रीजेस, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. 90th क्वेश्चन. The temperature at which real gas obey the ideal gas laws over a wide range of pressure is called.
सो जहां पे टेम्परेचर जो है, जहां पे रियल गैस आइडियली बिहेव करती है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे रियल गैस आइडियली बिहेव करने लग जाती है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। सो 90th का इट हैज टू बी बी ऑप्शन, बॉयल्स टेम्परेचर। नेक्स्ट इज 91st क्वेश्चन, solubility of a gas in water. First is increases with the rise in temperature. No, temperature जब increase करेंगे तो गैस बाहर आएगी, solubility decrease करेगी। Second option, increases with the increase in pressure. So this is correct option because Henry's law क्या कहता है? 91st क्वेश्चन देखिए। So according to Henry's law, M is directly proportional to P, that is mass of the gas dissolved inside the solvent। अगर वाटर में बात हो रही है तो mass of the gas dissolved inside the water should be directly proportional to pressure of that gas above that liquid। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उतनी ज्यादा वो गैस डिसॉल्व होगी उस लिक्विड में। सो 91st का इट हैज टू बी बी ऑप्शन, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। Next is 92nd question. At NTP, the order of mean square velocity of molecules H2, N2, O2 and HBr is? Normal temperature and pressure है, that means temperature pressure दोनों सारी गैसेस के लिए सेम लिए गए हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। 92nd देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है वैसे? तो एनटीपी टेम्परेचर तो कांस्टेंट ले रहे हैं, सारों के लिए सेम ले रहे हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं बनता इनका। तो मॉलिक्यूलर मासेस के हिसाब से वेरिएशन है आरएमएस की। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो देखिए इस रिलेशन को, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी आरएमएस क्या होगी? कम होगी। तो जिस गैस का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है उसकी आरएमएस हैज टू बी लोएस्ट। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मासेस का रिलेशनशिप देखिए, सेम रिलेशन है H2, उसके बाद N2, देन वी हैव O2, देन वी हैव HBr। ये मॉलिक्यूलर मासेस का रिलेशन है आपस में। तो आरएमएस का क्या रिलेशन होना चाहिए? उल्टा, बिकॉज VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। सो इट हैज टू बी, आरएमएस का रिलेशन क्या होगा? H2 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन HBr। So it will be the relationship for RMS velocities of these molecules. So कौन सी करेक्ट ऑप्शन है? देखिए A, 92nd का A करेक्ट, A is the correct option, H2 greater than N2 greater than O2 greater than HBr। So 92nd का A option। 93rd question, if the inversion temperature of a gas is minus 80 degrees Celsius, then it will produce cooling under Joule-Thomson effect at। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है किसी भी गैस के लिए? वो टेम्परेचर जिसके नीचे अगर गैस को एक्सपैंड किया जाए एडियाबेटिकली तो कूलिंग होती है, और जिसके ऊपर या जिस पे इन्वर्जन टेम्परेचर पे भी अगर उसको एक्सपैंड किया जाए एडियाबेटिकली तो कूलिंग नहीं होगी। इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे अगर गैस को एक्सपैंड किया जाए एडियाबेटिकली तो कूलिंग ऑफ द गैस अकर्स, और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर पे और उस टेम्परेचर से ऊपर गैस को एक्सपेंड किया जाए देन हीटिंग टेक्स प्लेस। तो इन्वर्जन टेम्परेचर गैस का दिया है -80 डिग्री सेल्सियस, विच इज इक्वल टू, केल्विन्स में कन्वर्ट कीजिए इसको। 93rd क्वेश्चन देखिए, -80 डिग्री सेल्सियस, that will be equal to -80 plus 273, that is equal to 193 केल्विन। तो ये अगर इन्वर्जन टेम्परेचर है गैस का, इसके नीचे अगर एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में लेके जाएंगे तो कूलिंग होनी है। अब इसने पूछा है क्वेश्चन देखिए, देन इट विल प्रोड्यूस कूलिंग अंडर जूल थॉमसन इफेक्ट एट, इससे नीचे वाली जो भी ऑप्शन है 298 इससे ऊपर है, 273 इससे ऊपर है, 193 केल्विन नहीं लेना है, माइंड इट,
193 केल्विन कैन नॉट बी द आंसर। 193 केल्विन इन्वर्जन टेम्परेचर है, और उस पे अगर आप एक्सपैंड करते हो तो कूलिंग नहीं होगी, हीटिंग होगी। आपने क्या करना है, it has to be lower than 193 Kelvin. It has to be lower than 193 Kelvin and it will be 173 Kelvin. So 93rd का 173 Kelvin is the correct option. So 93D will be the correct option. 94th question. An ideal gas will have maximum density when? So next is 94th question. This is PM is equal to rho RT. He is asking that the ideal gas will have maximum density when pressure or temperature given है. So density का pressure से क्या relation है? Density is directly proportional to pressure. और सेकंड देखिए टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, डेंसिटी, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी, हाई प्रेशर जब होगा और लो टेम्परेचर जब होगा। तो डेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन प्रेशर इज हाई, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी लो, लो टेम्परेचर। तो ऑप्शंस में जाइए आप, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाली ऑप्शन कौन सी है, इन सब में हाई प्रेशर फर्स्ट ऑप्शन में 0.5, बी में इट इज 2 एटमोस्फेयर, सी में इट इज 1 एटमोस्फेयर, डी में इट इज 1 एटमोस्फेयर। एंड लो टेम्परेचर, so it will be lowest किस में है, बी ऑप्शन में। so high pressure and low temperature पे density will be maximum, so it has to be B option, P is equal to 2 atmosphere and T is equal to 150 Kelvin। 95th क्वेश्चन देखिए, at what temperature in the Celsius scale volume of a certain mass of gas at 27 degrees Celsius will be doubled keeping the pressure constant। प्रेशर कांस्टेंट मींस कौन सा लॉ फॉलो कराओगे आप, 95th क्वेश्चन, प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ होना चाहिए, इट हैज टू बी चार्ल्स लॉ, इट हैज टू बी चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, दिस इज चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। Now is saying that at what temperature in the Celsius scale volume of a certain mass of the gas at 27 degree Celsius, 27 क्या है, this is T1, इसको केल्विन में करेंगे आप, और will be doubled keeping the pressure constant, वॉल्यूम को डबल करवाना है आपने, इसको V मान लें। T1 क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 प्लस 27 इज 300 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V क्या करवा देना आपने, 2 ट्वाइस V, टेम्परेचर T2 उसने पूछा है क्या होगा T2, तो V कैंसल्स आउट, T2 विल बी इक्वल टू 600 केल्विन आ रहा है आंसर ये। तो वॉल्यूम डबल कब होगी, टेम्परेचर जब डबल हो जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा जब, और 600 केल्विन का क्या मीनिंग है, 600 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे करेंगे आप, 600 माइनस 273, that is equal to 327 degree Celsius. So it has to be 95th का answer has to be 327 degree Celsius, B will be the correct option। जब भी चार्ल्स लॉ लगाइए आप तो इसमें टेम्परेचर्स जो हैं they have to be in Kelvin scale, टेम्परेचर will not be in degree Celsius scale, अदरवाइज आंसर आपका गलत आएगा। V1 जो है उसको V माना मैंने, वॉल्यूम डबल कर देनी है, V2 को ट्वाइस V कर दिया, T1 टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 प्लस 27 300 केल्विन। T2 निकालना है हमें, T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन, और केल्विन वाले टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में करना है अगर, तो आपको माइनस 273 करवाना पड़ेगा। सो 95th का 327 डिग्री सेल्सियस will be the correct option, that is the B is the correct option। Next question is 96th question। To separate bulbs contain ideal gases A and B. The density of gas A is twice that of gas B.
The molecular mass of A is half that of gas B. The two gases are at the same temperature. The ratio of the pressure of A to that of gas B is, that is, he has asked for the ratio of the pressures. देखिए 96 क्वेश्चन को. Next question is 96th question. To separate bulbs contain ideal gases A and B. The density of gas A is twice that of gas B. The molecular mass of A is half that of gas B. The two gases are at the same temperature. The ratio of the pressure of A to that of gas B is. तो आपको पता है PM is equal to rho RT. This is the relationship. Now सेपरेट गैसेस के लिए लिया जाए ये, तो PA क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा पहली बात, तो दैट विल बी इक्वल टू रो RT बाय M. और अगर दो सेपरेट बल्ब्स हैं कंटेन आइडियल गैसेस A एंड B, द डेंसिटी ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ, डेंसिटीज में रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मासेस में रिलेशन है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और दोनों गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है. दैट मींस PA फर्स्ट गैस के लिए जो होगा दैट विल बी रो A अपॉन M में. RT लेने की जरूरत ही नहीं बिकॉज कांस्टेंट्स है वो. और प्रेशर B जो होगा सेकेंड गैस के लिए दैट विल बी रो B अपॉन MB. फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए सेकेंड से, दैट विल बी इक्वल टू PA अपॉन PB इज इक्वल टू रो A अपॉन M में डिवाइडेड बाय रो B अपॉन MB. सबसे पहला काम तो आपने ये रिलेशन डिराइव करना है. कैसे किया देखिए, PM इज इक्वल टू रो RT. फर्स्ट गैस के लिए जो प्रेशर आएगा, वैसे प्रेशर क्या आएगा गैस के लिए, दैट इज रो RT अपॉन M. टेम्परेचर दोनों सैंपल्स के लिए सेम है तो आपने ये तो लेना ही नहीं है. R भी कांस्टेंट होता है आपको पता है, तो PA फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर जो होगा दैट विल बी रो A अपॉन M में. सेकंड गैस के लिए जो प्रेशर होगा दैट विल बी रो B अपॉन MB. डिवाइड कर दीजिए, PA अपॉन PB आ जाएगा रो A इंटू MB अपॉन MA इंटू रो B. अब रिलेशनशिप्स पे आइए. द डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस B. इसका अगर डेंसिटी 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2, ट्वाइस हो जाएगा. सेकेंड रिलेशन क्या बोला है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज हाफ दैट ऑफ गैस B. मॉलिक्यूलर मास जो है A का वो हाफ है, या अदर वे राउंड कह सकते हैं कि अगर A का मास जो है 1 है तो B का मास क्या होगा, ट्वाइस. तो रिलेशनशिप लगा दिए, PA अपॉन PB जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू PA अपॉन PB इज इक्वल टू 4. सो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ A टू दैट ऑफ गैस B इज 4:1 और 4 ओनली. एक बार फिर से देखिए 96 क्वेश्चन में क्या किया मैंने, PM इज इक्वल टू रो RT लगाया, प्रेशर इज इक्वल टू रो RT अपॉन M. प्रेशर जो आएगा फर्स्ट का दैट विल बी रो A अपॉन M में, बिकॉज R और T कांस्टेंट्स हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है उसने. PB सेकंड गैस के लिए प्रेशर क्या आएगा, रो B अपॉन MB. PA अपॉन MB निकालिए, रो A अपॉन M में डिवाइडेड बाय रो B अपॉन MB. इनका दोनों का रिलेशन दिया हुआ है आपस में कि फर्स्ट गैस जो है A गैस जो है दैट इज ट्वाइस डेंस एज कंपेयर टू सेकंड गैस. मॉलिक्यूलर मासेस का भी रिलेशन दिया है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इज हाफ दैट ऑफ गैस B. तो ये रिलेशन लगा दिया मैंने, 2 into 2 दैट इज 4 टाइम्स आ जाएगा. PA अपॉन PB इज इक्वल टू 4:1 और इट विल बी 4. सो 96 का C will be the correct option, 4 will be the correct option. 97th क्वेश्चन देखिए, if a gas is expanded at constant temperature, गैस की एक्सपेंशन हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, A ऑप्शन है, द प्रेशर इंक्रीजेस, विल इट बी करेक्ट. कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा रिलेशन लगाते हैं आप, बॉयल्स लॉ. तो ऑप्शन वाइज चलते हैं. 97th क्वेश्चन जो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सपेंशन मींस वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. तो प्रेशर कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, नो इट विल नॉट बी करेक्ट ऑप्शन. सेकंड बी पार्ट पे आइए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम.
तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल रिमेन द सेम। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन 97th का बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स remains the same. Next come to 98th question. Which one of the following statements is wrong for the gases? Wrong for the gases पूछा है इसने. A, gases do not have a definite shape and volume. This is correct. B option, volume of the gas is equal to the volume of the container containing the gas. Yes. C, confined gas exerts a uniform pressure on the walls of its container in all the directions. Yes, this is also correct. Random motion है gas molecules का. D option देखिए, mass of the gas cannot be determined by weighing a container in which it is enclosed. तो ये रॉन्ग है, बिकॉज मास निकालना हो गैस का तो कैसे निकालते हैं? पूरी जिसमें मास है उस कंटेनर के साथ पूरे का मास निकाल दिया, और कंटेनर का मास अगर नोन है तो टोटल जो मास आ रहा है उसमें से कंटेनर का मास निकाल दीजिए, दैट विल गिव यू द मास ऑफ द गैस. तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, रॉन्ग है कि मास ऑफ द गैस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय वेइंग अ कंटेनर इन विच इट इज एनक्लोज्ड. तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, मास ऑफ द गैस कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी डिटरमिन्ड बाय वेइंग अ कंटेनर इन विच इट इज एनक्लोज्ड. सो डी ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट कम टू 99th क्वेश्चन. 99th क्वेश्चन है, densities of the two gases are in the ratio 1:2 and their temperatures are in the ratio 2:1, then the ratio of their respective pressures is. So 99th क्वेश्चन देखिए, प्रेशर जो है उसका क्या रिलेशन होता है डेंसिटी के साथ? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डेंसिटी. प्रेशर पीएम इज इक्वल टू रो आर टी, दैट मींस प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. और टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज पीएम इज इक्वल टू रो आर टी. यहां से रिलेशन देखिए, पी और रो का डायरेक्ट रिलेशन, पी और टी का डायरेक्ट रिलेशन. दैट मीन्स वी कैन से दैट P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू रो1 T1 अपॉन रो2 T2. ये रिलेशन आप कह सकते हैं, ये हो सकता है. अब आ जाइए आप, डेंसिटीज ऑफ द टू गैसेज आर इन द रेशियो 1:2. डेंसिटी का क्या रेशियो दिया है? रो1 अपॉन रो2 क्या दिया है? 1:2. T1 अपॉन T2 का क्या रेशियो दिया है? टेम्परेचर्स आर इन द रेशियो 2:1. 2:1. तो प्रेशर्स का क्या रिलेशन आएगा? 1:1 ओनली. P1 is to P2 will be equal to 1:1. That means 99th का A, that is 1:1 has to be the correct option. एक बार फिर से देखिए 99th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेंसिटीज ऑफ द टू गैसेज आर इन द रेशियो 1:2. डेंसिटीज का रेशियो दिया है एंड टेम्परेचर्स आर इन द रेशियो 2:1. टेम्परेचर्स का रेशियो दिया है एंड देन रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रेशर्स इज Pm इज इक्वल टू रो आर टी. आपको रिलेशन पता है, प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों. प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. That is, P is directly proportional to rho, P is also directly proportional to T. P1 upon P2 will be equal to rho1 T1 upon rho2 T2. Rho1 upon rho2 is equal to 1:2 and T1 upon T2 is equal to 2:1. 2 cancels out and we have the relation that P1 और P2 में क्या relation है? 1:1. So 99th का A 1:1 will be the correct option. 100th question, gas deviates from ideal gas nature because molecules. तो ए ऑप्शन देखिए, आर कलरलेस. तो इससे तो कोई मतलब नहीं बनता कि कलरलेस है या कलर्ड है तो गैस डेविएट कर जाएगी फ्रॉम द आइडियल गैस नेचर. सेकंड ऑप्शन, अट्रैक्ट ईच अदर. यस, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द मेन कॉज कि आइडियल गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर से क्यों डेविएट करती है? बिकॉज अट्रैक्शंस हैं रियल गैसेज में, गैसेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो एक जो रिलेशन था, एक पोस्टुलेट था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज में कि देयर आर नो इंटरेक्शंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, वो किस में था? आइडियल गैसेज में. लेकिन रियल गैसेज में तो अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्शंस होती हैं. जब इंटरेक्शन होती है तो रियल गैस डेविएट करेगी फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. सो 100th का बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन,
that gas deviates from the ideal gas nature या ideal gas behavior because molecules attract each other. So 100th का B will be the correct option. So this was gaseous state of matter.